Very good morning to all. Myself, Bhupesh Kumar Gupta, will be today presenting with you about basic concepts of software engineering, and that is introduction to the software engineering. So let us try to understand why there was a need for a automated software or a need for a automated program, so that our tasks become easy and simpler. So you can very well understand when the our tasks become very lengthy, time consuming, then human beings might suffer from tiredness and fatigue. Human beings might suffer from tiredness and fatigue, but the machine will not. So there was a need for some programs or some automated machinery system, so that the task done by human beings is automated, or with the help of machines the working become very simple. So the topics for discussion today is what is the basic concepts of software engineering. So what is software engineering? What is the basic difference between a program and a software product? Evolution of software engineering. How does the concept of software engineering evolved? Notable changes, because if we consider the last 50 years history, the changes have we can see the changes in the development of software practices. Various types of life cycle models are being used nowadays. They were in practices. New practices are also in practices. Let us move one by one. So we can say that software is an engineering approach to develop a software, to develop some large program or a large project which will automate or make your working smooth and easier. So in this we have given an example. We are making it analogous to the construction of a building. Okay. So here it says that it is a systematic collection of past experiences. Systematic collection of past experiences. Various tasks were done. Some tasks failed at different times. Some tasks failed. Some tasks were succeeded. Some tasks failed at different times. Human beings learned that we should do not have to perform this, because after performing this we will get the negative result. In a simple example, we train a newborn child. A simple example, train a newborn child. Systematic collection of past experiences. It includes various techniques, various methods, and different guidelines ki how do we have to proceed from very scratch till the product is delivered to the client. So basically the industries today are now following the concept of TQM. TQM is a word in economics which stands for total quality management, and it says that we have to focus on the quality from the very beginning, from the very first point till the last day the product is your delivered. And systematic collection of past techniques, methods. Okay? And moving engineering approach. Here it has shown you an example for building constructions. Okay? Building construction, that how a building or a township is being constructed. Okay? Heavy use of past experiences. Engineering practices that whatever we are making today, whether it is a heavy automobile industry or anything else, it hundred of thousands years of past experiences involved in it. For example, tires. For example, your tires. Our ancestors and our forefathers used to make tires of after cutting wood logs. Those wooden tires became parts of बैलगाड़ी. वो बैलगाड़ी खींचने के काम आने लगे. Some more revolutions came. Iron was developed. Iron wheels were developed. They started fitting iron wheels. Then they started invented electricity. Then they started developed motors. They fitted motors into that part. So one example can be your tires, जिसने कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को बहुत तेजी से आगे उसको बढ़ाया. ठीक है. पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या बोलते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है, हमने सारे के सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को
सिस्टमेटिकली अरेंज करा, वन बाय वन, पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, सच दैट कि हमारा जो फाइनल आउटपुट जो हमें चाहिए वो हमारा बिल्कुल सही आए. सिस्टमेटिकली अरेंज. योर पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो, ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, एंड ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स सर्टेन थ्योरीज वर डेवलप्ड and they were quantified, they were practically proved, quantitative techniques were provided and they were practically proved, and many were just thumb rules. Thumb rules means ऐसा होता है तो होता है, there is no if and but, no if and but. And one example of thumb rule can be sunrise in the east. For every people on the earth, 24/7 into 365, whether person is living on the any part of the globe, they will say that sunrise in the east. This is a thumb rule for each and every person on the earth. Trade-off between various alternatives for doing one simple task or a job. There can be different methods and different mechanisms. And trade-off, it means that with which method we should go with. हमें कौन सा मेथड आगे अपने काम के लिए अप्रोच करना है कि हम इस वाले मेथड के साथ जाएंगे. And industries के point of view से one method is best in which cost is minimized and output is maximized. Minimum input, maximum output. Approaches to cost effectiveness. The practical part is that our project should not go beyond budget. अब हमारे जो projects develop हो रहे हैं वो हमारे budgets के पार नहीं आना चाहिए. This is a diagram for your technological development patterns that today we are following the engineering practices, and the basis for today's engineering practices is the art. With the passage of time, our technological we have seen a tremendous growth in technology. Earlier it says that we were having arts, sculptures, different cultures, traditions, arts, and I have given an example of the art which contributed a lot to the technology. That one example is tire industry. Growth in the tire technology contributed a lot to the human mankind. जो आपका सभ्यताएं डेवलप हुई, जो सभ्यताएं बीती, उसमें टायर का एक बड़ा अच्छा योगदान है. धीरे धीरे क्या बोलता है कि यहाँ तक हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन इस पॉइंट तक हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो अनऑर्गेनाइज थे. फिर बाद में उन्होंने, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने पूरा दिमाग लगाया कि क्यों ना हम अपने एक्सपीरियंसेस को जो है एक सीरियल ऑर्डर में या सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में लगाएं, जिससे कि जो भी हमें बनाना है, जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट. आप उससे कोई भी प्रोडक्ट मान सकते हो, किसी भी डोमेन का, मैकेनिकल डोमेन का, इलेक्ट्रिकल डोमेन का. इनका वो आपका एक क्राफ्ट्स वाले पार्ट में आएगा. अब उन्होंने क्या करा है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस और उसके साथ जो आपके साइंटिफिक बेसिस थे या जो साइंटिफिक थ्योरीज थी, उनको उन्होंने मिक्स करके बोला कि नाउ इट इज एन इंजीनियरिंग. एग्जाम्पल, टायर प्लस मोटर कनेक्टेड टू इट एंड सम इग्निशन सिस्टम. अगर उसमें कनेक्ट हम कर दें, अगर उसमें हम कुछ इग्निशन सिस्टम लगा दें जो आज के टाइम में है, तो अवर टायर विल स्टार्ट मूविंग फर्दर. ठीक है. एवोल्यूशन ऑफ आर्ट इनटू इंजीनियरिंग. हमारा जो आर्ट सिस्टम था वो आपका एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया. एक्सप्लोरेटरी सिस्टम जो है हमने बनाने शुरू करे, और जो हमारी अर्लियर कोडिंग स्टाइल थी वो आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टाइल थी, जिसको हमने बोला कि दैट इज बिल्ड एंड फिक्स. जो हमारी अर्लियर प्रोग्रामर्स थे वो ये वाला अप्रोच आपका यूज कर रहे थे, बिल्ड एंड फिक्स स्टाइल. तो बिल्ड एंड फिक्स स्टाइल बेसिकली क्या, इन्होंने ये फाइनली इसमें कंक्लूड करा कि अगर जब आपका प्रोग्राम साइज स्मॉल है तब आपका ये बिल्ड एंड फिक्स स्टाइल सही काम करेगा, लेकिन एज सून एज जब आपके सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ता है तब आपका ये बिल्ड एंड फिक्स साइज जो है ये इट विल नॉट वर्क फेयरली. ये आपका फेयरली काम नहीं करेगा. डिफरेंट डर्टी प्रोग्राम्स क्विकली डेवलप्ड. ठीक है. दिस इज योर एक्सप्लोरेटरी स्टाइल. यहाँ पे उन्होंने ये फाइंड आउट करा कि जब आपका प्रोग्राम साइज बढ़ता है तो आपका जो ये आपका एक्सप्लोरेटरी स्टाइल है, जब तक आपका प्रोग्राम साइज छोटा है तब तक आपका एक्सप्लोरेटरी स्टाइल विल वर्क फाइन, लेकिन एज सून एज योर प्रोग्राम साइज इंक्रीजेस योर एक्सप्लोरेटरी स्टाइल विल फेल, एंड
your software engineering approaches will work fine, and after that अगर सब प्रोग्राम जो साइज अगर आपका वो बहुत ज़्यादा साइज बढ़ जाता है, तब आपका जो अप्रोच सही काम करेगा दैट इज मशीन बेस्ड या टूल बेस्ड प्रोग्रामिंग्स, जो आज के डेट में आपका यूज हो रहा है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग बेस्ड जो आपके यूज करके आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। अब इनके साथ समस्या क्या थी कि जब आपका प्रोग्राम साइज बढ़ गया तो आपका एफर्ट्स और कॉस्ट और टाइम ये आपका इंक्रीज होता है, और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है ये। एक्सप्लोरेटरी स्टाइल जो है, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये था कि अनमेंटेनेबल कोड जो है ये इसके साथ डेवलप हो रहा था। इतना बड़ा मतलब अनमैनेज्ड टाइप का काम हो जा रहा था, जिसको फॉर एग्जांपल एक आपका डेवलपर चला गया इंडस्ट्री बीच में, कंपनी को छोड़ के क्विट करके, दूसरा डेवलपर जब आ रहा है तो वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि आगे हमें काम कैसे करना है। तो बेसिकली इसमें टीम वर्क में समस्या आ रही थी कि जब आपके प्रोजेक्ट साइज बहुत ज़्यादा हो गए तो वी नीड ए टीम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो टीम वर्क, एक पर्टिकुलर टीम जो है वो उस एक्सप्लोरेटरी स्टाइल को यूज करके किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी, दिस वाज बिकमिंग अ चैलेंज। एफर्ट्स रिक्वायर्स टू डेवलप ग्रो विद एक्सपोनेंशियल, एफर्ट्स जो थे वो आपके एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। एंड अप्रोच जो है एक, जब ये वाला अप्रोच जो है वो कंप्लीटली फेल हो जाती है जब आपका प्रोग्राम साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि इसने एक इंटरप्रिटेशन निकाला है कि ह्यूमन मेमोरीज जो है उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। ह्यूमन मेमोरीज को हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में तोड़ा इसको। और बेसिकली एक सवाल पूछा है इसने यहाँ पे कि अगर आपको सवाल पूछा कि अगर 10 AM हुआ है तो 24 आवर्स में कितने आवर्स रिमेनिंग हैं। तो नेक्स्ट डे, आप सबको पता है कि दिन जो है वो 24 आवर्स का है। ये तो परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में फेच्ड है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में फेच है। तो मेंटल मैनिपुलेशन इन्होंने इसमें बोला है कि मेंटल मैनिपुलेशन करा है और 24 - 10 निकाल के कितना टाइम बचा है डेज में, ये इन्होंने इसमें कैलकुलेट मतलब इंटरनली दिमाग में कैसे कैलकुलेट होता है, ये वाली सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। कुछ पार्ट जो है वो मेमोरी के आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, और कुछ पार्ट जो है ये आपके प्रोसेसिंग सेंटर में जाके कि आपका कैलकुलेशन होता है। अब सवाल ये कि एक नया सब्जेक्ट, एक नया डिसिप्लिन आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा पढ़ के हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब पढ़ के आखिर मिलेगा क्या, होगा क्या। बेसिकली यहाँ पे ये बात बोलता है कि जब आपका प्रोग्राम साइज बढ़ेगा 10,000, 20,000 लाइन, 30,000, 50,000 लाइन्स तक जाएगा, तो इतने बड़े साइज के सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम्स को मैनेज करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट। अब हमें एक प्लान्ड स्ट्रेटेजिक मेथड की जरूरत है जिसमें हम इतने बड़े 50,000 लाइन या 1,00,000 लाइन्स के कोड्स को मैनेज कर पाए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब एक्सपोनेंशियल आपका कोड साइज बढ़ रहा है तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। और जो आपका एडहॉक अप्रोच है, जो हम एक्सप्लोरेटरी स्टाइल पहले मैनेज कर रहे थे, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े प्रोग्राम को, इतने बड़े काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इसमें आ रही थी, ठीक है। और ये वाला अप्रोच जो है ये आपका फेल हो गया, एडहॉक अप्रोच, ठीक है। एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं ये हम सॉल्व कर पाएंगे। लार्ज प्रोजेक्ट्स को बेसिकली बोल रहे हैं कि उसे हम स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ेंगे ताकि एक एक पार्ट को हम इजीली मैनेज कर पाएं। आल्सो वी विल लर्न द वेरियस टेक्निक्स अबाउट स्पेसिफिकेशन क्या है आपका, डिजाइनिंग क्या है, यूजर इंटरफेसिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, टेस्टिंग क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एंड एटसेट्रा। ये सब रफली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या हम लोग सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब रफली ये वाला पार्ट है, ठीक है। एक्वायर्ड स्किल्स टू बी ए बेटर प्रोग्रामर, एक अच्छा प्रोग्रामर किस तरीके से बनना है। 5-10 हज़ार 2-3 हज़ार लाइन ऑफ कोड डेवलप कर दी, लेकिन वो आपकी जो लाइंस है वो
आपको एक मैनेज्ड तरीके से लिखनी है, ताकि एक तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर कोई इंजीनियर कंपनी क्विट करता है, कंपनीज आल्सो से दैट कि यू हैव टू राइट एन प्रोग्राम इन ए मैनेज्ड मैनर, whatever approach they will follow, function oriented design, object oriented design, whatever दूसरा इंजीनियर आएगा तो उसे भी हफ्ता 10 दिन लगेंगे उस पूरे फ्लो को समझने में। तो अगले बंदे के लिए भी आसान हो जाएगा कि अब इसमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे काम करना है। अगर मैनेज तरीके से काम होगा तो पहली बात है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बेटर क्वालिटी प्रोग्राम्स आपके बन जाएंगे, अच्छे क्वालिटी के प्रोग्राम्स बनेंगे। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस इसमें एक टर्म आता है आपका इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या बोलता है कि जब आपने जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करे हैं वो आपके यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में फेल हो जाते हैं, इट इज नोन एज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। बेसिकली आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो क्रैश हो जा रहा है, यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है, एक्सपेंसिव है, उसमें चेंजेस कर पाना बहुत मुश्किल है, और जो क्लाइंट्स को डेट दी है उस पर्टिकुलर डेट तक आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, या जो भी रिसोर्सेज हमने उसमें हमारे पास हैं उनको वो नॉन ऑप्टिमली यूज कर रहा है। नॉन ऑप्टिमली मींस उनको वो ऑप्टिमाइज्ड मैनर में यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड मैनर में यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इज द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 1960s, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी रिलेटिव कॉस्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की 1960s के बाद, जो 60s के बाद का अगर हम टाइम निकालें और 2008 तक अगर उन्होंने टाइम लिया है तो उसमें जो आपकी रिलेटिव कॉस्ट आ रही है आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, दैट इज ऑन डिक्लाइन मीन्स गिर रही है, ठीक है। अब फैक्टर जो इसके सॉफ्टवेयर क्राइसिस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली क्या है, एक तो ये कि आपकी प्रॉब्लम साइज बहुत ज़्यादा है। जो आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियर्स हैं दे आर नॉट वेरी मच स्किल्ड, वो काफ़ी स्किल नहीं है, उनके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं है, दे आर नॉट स्किल्ड। इंजीनियरिंग increasing skill shortage, they are not skilled and they are not well trained to work on those particular languages or domains. Low productivity improvement, और अपने improvement के लिए वो they are not working enough, ठीक है। प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर, यूजुअली प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेयर एज सॉफ्टवेयर जो है साइज बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑथर्स जिसने अकेले प्रोग्राम्स बेसिकली एक या दो बंदे मिलकर लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है कि इसमें जो ये आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं इनमें आपकी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और कंपनीज हैज एन नंबर ऑफ डेवलपर्स, लेट्स से 50 to 100 डेवलपर्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। सिंगल डेवलपर, यहाँ पे आपका पूरा एक टीम वर्क है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पूरा टीम वर्क है। तो इसमें प्रॉपर इंटरफेसिंग नहीं है, वेल डिजाइंड इंटरफेसेस इसमें यूज करते हैं, यूज हो रहे हैं। इसमें प्रॉपर इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, जबकि यहाँ पे जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो आपका एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। एडॉक डेवलपमेंट है, जैसे मन में आ रहा है, मर्जी है वैसे आपके जो प्रोग्रामर है वो कोड कर रहा है। लेकिन जब आपका कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में काम होगा वहां पे सारा काम आपका सिस्टमैटिक तरीके से होगा। सिस्टमैटिक तरीके से इसलिए so that the cost is minimized and the profit is maximized. Types of software projects, software products, outsourced projects. Indian companies have focused on outsourced projects. Basically जो IT industries हैं इंडिया में उनको जो basically projects मिलते हैं वो US, UK and European countries से maximum projects हैं। तो यही बात इसमें मेन लिखी है कि जो आपके टॉप शॉट IT कंपनीज हैं they are focused on outsourced projects, ठीक है। and all these top shot companies, Infosys and TCS, all these are your service based companies, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स, बेसिकली आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं ये इनमें जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। अब जो अगर कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो रहा है तो इट विल रिक्वायर स्पेसिफिक हार्डवेयर टू रन। अगर जो भी आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल
कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है तो उसको रन करने के लिए हार्डवेयर चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का, कि कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का या जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है, मोबाइल सॉफ्टवेयर चलेगा किसके ऊपर, उसको रन करने के लिए इट विल रिक्वायर सम हार्डवेयर, ठीक है। तो उसके अंदर आपका प्रोसेसर भी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, ठीक है, रैम भी होगी। तो ऑल दीज आर मिक्स ऑफ। अब ये जो इन्होंने बनकर आया है, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाई लेवल प्रॉब्लम बेसिक यहाँ पे इसकी बात कर रहा है कि डिस्क विच टास्क आर टू बी सॉल्व बाय सॉफ्टवेयर, विच वंस बाय हार्डवेयर, ठीक है। ये हाई लेवल प्रॉब्लम्स की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिकली जब ये सारा काम हो जाता है, अब लास्ट जब सारा का काम हो गया, स्पेसिफिकेशन वाली बात हो गई कि क्या क्या बनाना है, डिजाइनिंग वाली बात हो गई, रफली बात कर रहा हूँ आज, डिजाइनिंग वाली बात होगी कि आपको पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर बनना है वो हमारा किस तरीके से बनना है, कौन कौन से टास्क, कौन कौन से डेवलपर्स को डिवाइड होने हैं, डिवाइड होने हैं, कौन कौन सा मॉड्यूल कौन कौन से टेस्टर्स के पास जाएगा टेस्टिंग के लिए, कौन कौन सा इंजीनियर किस किस टास्क में इन्वॉल्व रहेगा। जब ये पूरा काम जो है आपका जो आर्किटेक्चर है, चीफ आर्किटेक्ट उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो है यहाँ पे ये फाइनली बात बोलता है कि वी गो फॉर सिस्टम टेस्टिंग। ये तो बहुत लास्ट की बात है। सिस्टम टेस्टिंग ये हो गया कि अब आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो मतलब सारा जो काम है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक बात और बोली है कि हार्डवेयर सिमुलेटर्स आर इन यूज कर रहे हैं बेसिकली, और सिमुलेटर्स यूज करने का मेन पर्पज ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करा है वो एक्चुअल में क्लाइंट साइड पे जाने से पहले उसकी टेस्टिंग हो रही है कि हार्डवेयर के ऊपर कि ये वाला जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डेवलप करा है ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिमुलेटर्स मींस एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, रियल एनवायरनमेंट में नहीं, एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर हम प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर एक्स को रन करेंगे तो क्या ये सही रन करेगा, एक आइडिया हो जाता है उससे, ठीक है। टेस्टिंग ये अपने आप में अच्छा खासा एक टास्क है टेस्टिंग, ठीक है। इस पूरे पर्टिकुलर टास्क के लिए एक टीम चाहिए, इट्स अ टीम वर्क। और खाली सिस्टम टेस्टिंग ही नहीं है, इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। दिस इज अ बेसिक अप्रोच, वेरी बेसिक अप्रोच कि हाउ योर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग मेंटेन्ड। व्हाटएवर जो भी आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, वी फर्स्ट चेक इट, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, वी फर्स्ट चेक कि कंपनी एक्स के लिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाना पॉसिबल है या नहीं है। वेयर वी चेक वेयर टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज पॉसिबल और नॉट। आफ्टर दैट अगर ये डिसाइड हुआ कि पॉसिबल नहीं है तो बात ही खत्म। अगर पॉसिबल है तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने टेस्टर्स चाहिए, कितने पर्सन चाहिए हमारा एसआरएस एंड डिजाइनिंग के लिए, कितने डिजाइन इंजीनियर्स कितने चाहिए, कितना हमारा टाइम लगेगा डेवलपमेंट में, कितना टाइम लगेगा टेस्टिंग में, कितना हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, बजट क्या रहेगा हमारा आएगा, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग, क्या हमें हार्डवेयर चाहिए और हमको क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग हो गई, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड करा कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, जावा, HTML, CSS, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हमको रिक्वायर रहेंगे। फाइनली एक बार जब आपका प्रोजेक्ट बन गया, देन वी गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो रफली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करता है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स एक मॉड्यूल है, उसको चलाया, सही आ गया, उसके साथ फिर मॉड्यूल बी जोड़ा, फिर चला के देखा उसको, सही काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मॉड्यूल थर्ड मिलाया उसमें, फिर चला के देखा, इस तरीके से। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल 100 मॉड्यूल हैं, तो 100 मॉड्यूल जब लास्ट में एक साथ मिल गए तो उसके बाद देन वी गो फॉर योर सिस्टम टेस्टिंग आफ्टर दैट, ठीक है।
इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1950 के बाद जाके जो है ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच की बात हुई। प्रोग्राम्स इनिशियली बोल रहा है कि इनिशियली जो लिखे जाते थे वो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे इनिशियली, और जो आपके लाइन ऑफ कोड्स थे वो लिमिटेड थे, फ्यू हंड्रेड्स की बात चलती थी वहाँ पे उस समय। ये पुराने ज़माने की बात है, 50s की बात है, ठीक है। और जो डेवलपर्स थे उनका अपना कोडिंग स्टाइल था, और जिसको उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी स्टाइल है, और अपने डेवलपर ने अपने इंट्यूशन से, मतलब अपनी समझ से जो है उन्होंने उसको कोड को लिखा। ये आपके सन 50 की कहानी है, 50 की कहानी है। दूसरी आपकी उस समय आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होती थी, फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबॉल, ठीक है। जब ये लैंग्वेजेस आई आपकी 60s में, यहाँ पर 60s में, तो आपके डेवलपर्स का जो एफर्ट था ये आपका ड्रास्टिकली काफी कम हुआ। रिड्यूस द सॉफ्टवेयर डेवलपर एफर्ट्स ग्रेटली, क्योंकि आपकी उस समय आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी। असेंबली लैंग्वेज में कोड करने का कोई टेंशन जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा था कि जो आपके डेवलपर्स थे ये अभी भी एक्सप्लोरेटरी स्टाइल यूज कर रहे थे, ठीक है। तो प्रोग्राम साइज जो थे वो अभी भी आपके फ्यू अब 100 से निकल के आपके फ्यू थाउजेंड्स तक आ गए थे। थाउजेंड्स आपके यहाँ पे अब बात होने लगे कि फ्यू थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ सोर्स कोड तक आपके आ गए थे, ठीक है। अब आगे बात करें कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है अब लेट 60s में जब आए तो वो ये आपके थोड़े और बढ़ गए, 1000, 2000, 3000 इस तरीके से। जैसे जैसे समय बीतता गया आपके जो प्रोग्राम्स का साइज था वो भी बढ़ता जा रहा था। अब वो समय आ गया था जब ये फील होने लगा था कि आपका जो एक्सप्लोरेटरी स्टाइल है ये थाउजेंड्स में जब जाते हैं तो उस समय ये एक्सप्लोरेटरी स्टाइल जो है ये आपका फेल हो रहा था, और इस स्टाइल में काम करना आपका अत्यंत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उसमें प्रोग्राम लिखने की जो कॉस्ट आ रही थी और जो इफेक्टिवनेस या जो आउटपुट आ रहा था, अब आप इस स्टाइल से जो प्रोडक्टिविटी थी वो गिरती जा रही थी। समझ में आई बात, ठीक है। प्रोग्राम्स को ये समझ में आ गया कि अब इस मेथड से काम नहीं चलने वाला है, और क्योंकि एक्सप्लोरेटरी स्टाइल से जब हम काम करते हैं कोड को समझना और मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता जा रहा था। तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना जो है अब कुछ नया अप्रोच लगाया जाए। भाई अब जब डिफिकल्ट हो रहा है काम तो कुछ नया अप्रोच लगाना ही पड़ेगा। अब उन्होंने डिसाइड करा कि वी हैव टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ठीक है। ये नई एडवाइस निकल आई कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स ने ये एडवाइस करा कि अब हमें डिजाइनिंग पर फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलर अटेंशन टू डिजाइन, ठीक है। कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन। अब यहाँ पे जो ये आपकी बात निकल कर आई कि लेट 60s में आपका डिजाइनिंग के ऊपर फोकस हुआ, ठीक है। सीक्वेंस इन विच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। किस सीक्वेंस में हमें अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। डिजाइन प्रोग्राम्स हैव गुड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमें इस तरीके से प्रोग्राम्स को डिजाइन करना है जिनका कंट्रोल स्ट्रक्चर अच्छा हो। फ्लो चार्टिंग टेक्निक्स उन्होंने 60s में डेवलप करना शुरू करा। लेट 60s में आपकी ये फ्लो चार्टिंग मैकेनिज्म आ गया था, मेथड्स वर डेवलप्ड, ठीक है। वन कैन रिप्रेजेंट इन डिजाइन प्रोग्राम्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। फ्लो चार्टिंग टेक्निक यूज करके हम जो है हमारा पूरा प्रोग्राम किस तरीके से रन कर रहा है, किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, पहले कंट्रोल किस लाइन पर है, उसके बाद फिर कंट्रोल किस लाइन पर जा रहा है, ये चीज पूरी की पूरी आपकी फ्लो चार्टिंग मैकेनिज्म से डिसाइड होनी शुरू हुई। यूजुअली वन अंडरस्टैंड्स प्रोग्राम्स, ठीक है। मेंटली उन्होंने सिमुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस बात को। अब जब आपके अब फिर एक समस्या आ गई कि जब आपके लेट 60s में जब आपका प्रोग्राम साइज बढ़ा तो उसका फ्लो चार्ट भी मैसी होने लग गया, डिफिकल्ट होने लग गया। तो उसको फिर समझने में समस्या आने लगी कि अब इसको समझें कैसे, ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया कि किसका कंट्रोल अब कहाँ जा रहा है, इसमें अब किसका कनेक्शन कहाँ से हो रहा है। इट बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिबग। भाई कोई कोड में गड़बड़ी आएगी तो उसको फिर समझना पड़ेगा ना कि किस पर्टिकुलर लाइन में एरर है, और किस पर्टिकुलर लाइन में एरर है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है।
कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन की बात आ गई तो बेसिकली जो है गो टू यूज करते थे, और गो टू बेसिकली ये बोला जाता है कि गो टू को हमें यूज नहीं करना है, गो टू को जो है हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और गो टू क्या करता है, गो टू आपके प्रोग्राम्स को मेसी बना देता है, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट करते क्या है, वो आर्बिट्रली जो फ्लो है आपका उसको वो डाइवर्ट कर देते हैं, आर्बिट्रली वो उसके फ्लो को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो गो टू यूज नहीं करना है, गो टू को के यूज को आपको अवॉइड करना है, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतने काफी है, बाकी फिर कल लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।